with me today is Bilkis Mir, the Aqua Woman of Kashmir. In fact, I would say Aqua Woman of India. Why not? Bilkis, first of all, welcome. And I would start with congratulating you that one of your student, Kayakar Mohsen Ali, represented Kashmir at the Kartavya Path this Republic Day. I would want to ask you first thing that when you saw that moment unfold, what emotions were you experiencing? What thoughts were going on in your head in that moment? Thanks a lot for such a wonderful introduction. As everybody knows me as Aqua Queen. So, from Dal Lake to Kartavya Path, it was a proud moment, dream come true. As an athlete, Government of India called us as a special guest. It was a proud moment. It was an emotional moment because, we think on Republic Day, they honor athletes. It was a great moment for all of us. Right. If you talk about kayaking, it's not a lot of people know about this sport. Talk to me about how prevalent is it in Kashmir? If we talk about kayaking canoeing is the fifth largest Olympic event. You can say it have like in Olympic 16 medals. It's quite number of medals is too high. And if from last 7 to 8 years, I work in Kashmir from grassroots level, and now it is a popular sports there. Like, see, the first gold medal won by Mohsin Ali in Khelo India, that boost youngsters to take the sports further. एंड आफ्टर दैट जब मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बात किया था मोहसिन के साथ, उसके बाद लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लिया. आप देख लीजिए कितना फ़र्क पड़ा इस स्पोर्ट्स के लिए. और मैंने इस स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल से कश्मीर में, बिकॉज कश्मीर इज़ ब्लेस्ड विद सच अ वंडरफुल वाटर फ्रंट्स, both flat water and wild water. So there is a huge scope for this sports, and yes, of course, talent is there. So from last 4 years, we have more than 100 medals in national level, and we are a very good team in junior and sub junior right now, and I'm training them, and just अब वही सपना है कि देश को ओलंपिक्स तक पहुंचाना. You started doing kayaking at a very young age. Talk to me about the journey. How were you introduced to that sport? And, how did you pick this particular sport out of everything that was present? When we talk about 90s, there was no sports activity in Kashmir. And being a Kashmiri and being a Muslim, it was very challenging to get up, to adopt sports as a profession. There was a lot of struggle, and मुझे याद है जब मैं डल लेक में प्रैक्टिस करती थी विंटर में, या स्पोर्ट्स वियर ड्रेसेस भी पहनती थी, तो उसको सोसाइटी दूसरे नज़र से देखते थे. बट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. मेरा यही था, हैड अ ड्रीम कि मुझे कंट्री को हाईएस्ट पोडियम तक लेना है. I represent my state in more than 16 nationals. I had a record in 2003. I won 6 to 7 medals. And I represent then my country in World Cup 2009. I was a finalist in which was held at Hungary, Budapest. Hungary, Germany, Australia, England are the strong nations. So उसके बाद I was a 10-year national team coach. And after 2013, फिर से मुझे यही हुआ कि नो, आई हैव टू गो कश्मीर बैक. जो मैं नहीं कर पाई तो वो मेरी आने वाली पीढ़ी करे. दैट वाज बिकॉज ग्रास रूट लेवल पे हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है. जब एक एथलीट निकलता है, जब उसका नाम नहीं होता है, नो बडी इज़ देयर दैट टाइम. सो व्हेन आप जब कामयाब हो जाते हो, पोडियम तक पहुंचते हो, then only people recognize you. Before that, no one is there. Right. So यही मेरा था कि नहीं, मुझे पता है कि कश्मीर में बहुत टैलेंट है, इसीलिए मैंने ऐसे जॉब छोड़े जो चाहे यूरोप में मुझे ऑफ़र आया या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे 2 बार ऑफ़र दिया, मैंने उसको रिफ्यूज़ करके कश्मीर में ही काम करना स्टार्ट किया. बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि कश्मीर से
इंडिया को ओलंपियन निकले, बिकॉज पहले ही मैंने जैसे जिक्र किया कि वाटर स्पोर्ट्स प्रायोरिटी गेम जम्मू कश्मीर के लिए बन सकती है, बिकॉज नंबर ऑफ वाटर फ्रंट्स. सो आई कैन से कि फ्यूचर इज़ ब्राइट, बट ग्रास रूट लेवल पे वी नीड अ प्रोफेशनल रोड मैप. If we talk about kayaking, again, as I said earlier in the beginning, that not a lot of people know about the techniques that go behind it, what kind of fitness is required for this particular sport. Because in general, if you just talk to people, kayaking is something that, oh, you are on a vacation in Rishikesh, you just go with your friends and have a jolly time. So talk to me about the athletic side of it. What all goes behind in, like, what all goes in the preparation to for a good kayaker? Like, see, in our country, most of people don't know about this sports. If we see the popularity of this sports, it's very less. But if we see the medals, it's 16 medals there. And uh, kayaking is a pure strength game. Okay. मोहसिन अली को मुझे खेलो इंडिया मेडल तक 10 साल लगे टू ट्रेन देम, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. लाइक वो जो बेसिक बनाने में ही आपको 2 साल लग जाते हैं. सबसे पहले आपको एथलीट को स्विमिंग सिखाना है, बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग इज इट इज़ चैलेंजिंग टू ब्रिंग स्टूडेंट्स इन अ वाटर स्पोर्ट्स. हमारी कंट्री में हमेशा यही बोलते कि ट्रेडिशनली, आई रिमेंबर मेनी ऑफ पेरेंट्स से 12 साल तक हमें पंडित ने बोला, पीर ने बोला कि पानी के नज़दीक नहीं जाना है. इट इज़ चैलेंजिंग. अगर आपके पास 50 बच्चे आते और 50 में अगर आपके 10 भी निकलते, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बिकॉज हमारे स्कूल लेवल पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि like other countries, they have different policies. Like जो games, like मैं बर्मिंघम में थी, I saw there the basic, the foundation, like एथलेटिक, स्विमिंग एंड जिमनास्टिक, ये हर एक बच्चे को करना ही करना है. द बेसिक कंपोनेंट इज़ देयर जो हर एक स्पोर्ट्स में चाहिए. स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. जब एक बच्चे में ये तीनों चीज़ें आती है तो वो एक्सेल आराम से किसी भी स्पोर्ट्स में कर सकता है. सो जैसे आपने बोला, एक एथलीट को तैयार करने में 5-6 से 6 साल लगते हैं, बिकॉज kayaking need a professional planning. Then you have to start with the balance the boat. It is just a 12 kg boat. It's not a normal जो आपने ऋषिकेश वाला बात किया. That is a tourism related activity. Yeah. When we talk about a professional kayak, it is difficult to balance there. Okay. It will took you more than बैलेंस करने में ही आपके 2 महीने जाते हैं उस बोट में बैठने का. So it's a pure strength game. हमारा जो एथलीट्स है, टॉप एथलीट्स हैं, उनका अगर स्ट्रेंथ टेस्ट लेते हैं या लाइक 200 उनका बेंच प्रेस 200 तो केजी, इट रिक्वायर्ड ह्यूज स्ट्रेंथ, प्योर स्ट्रेंथ. एंड फॉर दैट हमारा जो प्लान, एक जैसे एक स्कूल में सिलेबस बनता है, आपको ये टॉपिक्स इसे ऐसे ही एक पूरा प्लानिंग बनता है. बेसिक प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी पीरियड एंड कंपटीशन पीरियड. देन आप किस एज कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है, आपको कौन सा कंपोनेंट में पुश करना किस महीने में. इट इज़ ऑल साइंटिफिक. लाइक आज का जो कोचिंग है, यू रिक्वायर्ड अ साइंटिफिक इनपुट. मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग विद द ह्यूमन बॉडी. यू हैव टू आपको एक पैरामीटर का पता होना चाहिए. Strength training be gym, that Yes. kind of rigorous workout? Yes, it's a different workout, like maximum strength, circuit training, other it's up to आपका कौन सा competition, मतलब नज़दीक क्या है. आप बेसिक प्रिपरेशन करवा रहे हो, प्रिपरेटरी या कंपटीशन पीरियड में आप जा रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका ये पूरा डिज़ाइन होता है. ये तो मतलब 10-10 साल की प्लानिंग बनती है. 10 साल के बाद फिर आपका 4 साल की प्लानिंग बनती है. फिर अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखोगे तो आज
जैसे ओलंपिक्स एशियन गेम्स आने वाला है जो सितंबर में जापान में है, ठीक है। Hmm. उन्होंने नेक्स्ट एशियन गेम्स की प्लानिंग की होती कि नेक्स्ट हु विल बी देयर। सो हमें उन पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए, और वी हैव टू बी practical and professional. Like me as a coach, I should know कि मुझे क्या चाहिए, मेरी गेम में क्या पैरामीटर्स। लाइक अगर हाइट होती है दैट इज़ द एडवांटेज। लाइक अगर हम वेट लिफ्टिंग में जाएंगे, अगर शॉर्ट हाइट का होता है तो वो उसके लिए एडवांटेज है। सो एक कोच को पता होना चाहिए कि मुझे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट स्टेप, identify the talent, yeah, then And then scientific, nurture it. there we required a scientific inputs when you identify the talent, you know. वहाँ मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जब आप टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, वहाँ पर प्रोफेशनल टीम की ज़रूरत होती है, वहाँ पर क्वालिफाइड कोचेस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर रिसर्च की ज़रूरत होती है, वहाँ पर साइंटिफिक इनपुट्स की ज़रूरत है। एक और चीज I want to know is that what kind of, like, for different sport, there's a different diet plan that they look at. For kayaking, what kind of diet plan have you followed in your career, and now you make sure that your students also follow? When I was an athlete, believe me, हमें न्यूट्रिशन एंड यू नो वन मोर थिंग वाज देयर जो मेरे पैडलिंग कैरियर में मिसिंग था। we do lot of physical, you know, fitness, but we never work for mental, you know, Mental health. health. Right. That is very very important. See, हम जब एथलीट थी, हमें सिर्फ फिजिकल फिटनेस एंड उस पर काम करते, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एंडोरेंस हो, बट व्हेन यू आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग यू कैन गेट बेटर रिजल्ट। सो वो उस टाइम मिसिंग था, बट नाउ यू हैव अ यू नो टॉप्स ओलंपिक एंड अदर थिंग्स, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, यू हैव ऑल द स्टाफ दियर। उस हिसाब से एथलीट को वो ट्रेन करते हैं, या एथलीट के प्रॉब्लम, एथलीट जो होता है ना वो बहुत इनोसेंट होता है, और आई कैन से इमोशनल भी बहुत होता है। तो आजकल जो जैसे स्ट्रक्चर बना है सेंटर ऑफ एक्सलेंसेस में या बाकी, उसमें वो सारी फैसिलिटी है, डाइट, द डाइटिशियन प्लान, कि आपको क्या खाना है, आपका वर्कआउट क्या चल रहा है, बट दिस इज फॉर हाई परफॉर्मेंस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रासरूट लेवल। लाइक मोहसिन अभी ही इज़ जस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन अ खेलो इंडिया। उसका जो डाइट है उसको हमें पुश करना है, बिकॉज डाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक कश्मीरी नॉर्मल फैमिली जो हम्बल बैकग्राउंड से आता है, जो हमारा कश्मीरियों का ब्रेकफास्ट होता है, दैट इज़ द कांदरू की रोटी, यू नो, वी हैव अ ट्रेडिशनल रोटी, यू मे बी यू नो, एंड नमकीन टी, एंड वो अभी तक जो मोसी निकला वो उसी से निकला है। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी स्टेक होल्डर्स से, और ख़ासतौर स्पॉन्सर्स से, एथलीट की हैंड होल्डिंग ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एथलीट स्ट्रगल करके आप आते हैं, बहुत सारे टूट कर वापस जाते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर दियर, बिकॉज आवर कंट्री इज़ ब्लेस्ड, यू नो, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। बिकॉज आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, एंड I'm just, like, forced to ask this question. I know it will be like a lot for you to relive those days, the struggle period. You started at a very young age, coming from an Orthodox Muslim family. Uh, a lot was said to pull you down. A lot was said about the way you would dress up for the sport. You did not get support, and even from your family, you got that support after a certain period, right? And you emphasized so much on mental health, and back in time you forget the mental health. You did not have the basic facility. Mental health at that time was like a far-fetched, right? So how did you tackle all of that? And what kind of, like, what kept you motivated in middle of everybody just pulling you down? I will tell you one thing.
जितना मेरे साथ जितना स्ट्रगल मेरे पास आया, it was not easy 90s में you dream for represent country. It was How like old you were you? that time I was 7 to 6 years. 6 to 7, yeah. 6 I start basic, 7 I was sub junior athlete. Hmm. And as a kid, yeah, I have that pain. It's like no encouragement, and when you had an injury you have to fight for that. And then overdated equipment that affects your performance. That time we don't have a nano, nothing. Even when I went to this World Cup, मैंने वहाँ पैडल खरीदा, before 3 months. मैंने कुछ पैसा जमा किया था अपनी सेविंग से, उसी से मैंने वो पैडल लिया, देन ओनली आई परफॉर्म, बिकॉज उस टाइम हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे. मैं बहुत टूटी, बहुत ज़्यादा. इवन मेरे प्लेइंग करियर में आई वॉज इन डिप्रेशन ऑल्सो, बट मैंने हार कभी नहीं मानी, बिकॉज मेरा यही था कि मैंने जब स्टार्ट किया, मेरा स्पोर्ट्स वियर ड्रेसेस को भी गलत नज़रिए से देखते थे. When I ran, there was lot of saying, she will spoil culture, she will spoil society, and other girls will learn for this. This is not meant for girls, water sports related activity. But I will tell you one thing, बाहर की चुनौतियाँ आपको हरा नहीं सकती है. बाहर कितना भी नेगेटिविटी है, मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया. अगर इंसान को हरा सकता है वो आपकी अंदर की चुनौती, व्हेन यू से आई कैन नॉट डू इट, दैट इज़ द बिगेस्ट आपकी लाइफ में हार. सो मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रगल ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे अलाइव रखा. लाइफ में जब ये तक स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से आती है? सी जब मेरी लाइफ में मैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी. जब मैंने वाटर स्पोर्ट्स में मैं गई, तो लोगों ने हंसा, बोला लड़की है तो वाटर स्पोर्ट्स में क्या करेगी. इवन देयर वाज लॉट ऑफ अपोजिशंस, बट आई डोंट नो, मैं बहुत ज़िद्दी थी. Okay. मेरे ज़िद ने मुझे, इफ़ यू से शी कैन नॉट डू इट, आई टेक चैलेंज, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़. तो मुझे लगता है अगर आज मुझे यहाँ मैं हूँ खड़ी, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ज़िद. वो ज़िद होता ना कि नहीं मैंने करना है. और मुझे मेरा टारगेट होता था हर दिन, नो मैटर वेदर इट इज़ बर्फ़ गिर रही है, बारिश है. आई रिमेंबर 90s में जब मैं अकेले डल लेक में पैडलिंग करती थी, नोबडी वॉच. मैं गिरती थी, उठती थी, और जितना ज़ोर से गिरती थी उतना ज़ोर से उठती थी. और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करती थी कि बिल्किस, अगर आप हारे, आज अगर आपने हार मानी, ये बिल्किस की हार नहीं, ये उन आने वाली लड़कियों की हार है जो मेरे बाद इस स्पोर्ट्स में आएंगे, जो मेरे बाद इस स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करेंगे. सो दैट वाज, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. एंड आई थिंक आपकी ये जर्नी, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली आपका एक जो सपना था, जो आई थिंक हम अभी बात कर रहे थे कि एक रिग्रेट, एक पिंच जो है कि आप ओलंपिक्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल जीतना चाहती थी, बट you became the first Indian woman to be on the Olympics jury, the Paris Olympics jury. That moment when you landed in Paris. Believe me, it was dream come true. It was not only for me as a Bilkis, it was a win for a whole country, the girl from Kashmir, that too from a small area of downtown area. I belong to Srinagar. So वहाँ से निकल कर एंड पेरिस ओलंपिक जूरी बनना, और उस स्पोर्ट्स में जो यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है. Yeah. Because water sports is a European dominated, European whether it is athlete या any technical imports, all the juries. अगर हम जूरी की बात करेंगे, I was the first Asian also to be there. और जितने भी थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, वहाँ से जूरीज थे. सो मैं वहाँ पर, बिलीव मी, जब मैं पहला दिन मेरा जो था
जब मैं पेरिस में लैंड किया, इट वाज फुल ऑफ इमोशंस। होल नाइट लाइक वो जो मेरे ना रोकड़े खड़े हो रहे कि क्या ये सपना पूरा हुआ। आई एम फाइनली इन अ जूरी पैनल। और मेरे लिए नहीं, मेरे देश के लिए ये खुशी की बात थी कि भारत से एक बेटी जाती है, दैट टू अ स्मॉल स्टेट, और वो हम वहाँ पर कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और हाईएस्ट फॉर्म। उसके बाद ओलंपिक्स के बाद कुछ नहीं होता, ये हर एक एथलीट का ड्रीम होता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहती हूँ, मेरे वेल विशर्स का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया। और फाइनली दैट इंडिया वाज देयर इन अ जूरी पैनल। अब वो लोग आपके रिलेटिव्स हों या परिवार में हों, जिन्होंने एक टाइम पे कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको गिराने के लिए, आज उनका रिएक्शन आपकी सक्सेस को लेके कैसा है? सी बोलते हैं ना, चढ़ते हुए सूरज को सलाम। सलाम हाँ, ये तो करते है। हैं। जब इंसान स्ट्रगल में होता है तब बहुत सारी बातें बनती है, बट इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। और जितना भी स्ट्रगल आपको आएगा, ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आता है। लाइक अगर हम जब किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि भैया इसका ईसीजी करो। जब वो ईसीजी करवाता है तो जब तक उसमें ये ग्राफ अप एंड डाउन वाला नहीं बनेगा, तब तक उसको बोलते हैं ये ज़िंदा है। अगर वो सीधा होगा तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये गया। गया। तो लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए अप एंड डाउन्स बहुत ज़रूरी है। वो आपको ज़िंदा रखते और वो आपको बड़ी चीज़ के लिए तैयार करते। बहुत सारे लोग जब मुश्किलात आते हैं तो वो टूट जाते हैं, बट उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो जो स्ट्रगल है वो आपको छोटे मोटे मंच के लिए तैयार नहीं करता है, वो आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए। क्योंकि जब हम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, लाइक जब तक हम एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, जब तक हमें दर्द नहीं होगा, तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी लाइफ में जब तक स्ट्रगल अप एंड डाउन्स आते हैं, तो यू नो देन ओनली यू यू कैन अचीव। लाइक मेरा मानना है कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। और आज ये जो बिल्किस आपके सामने खड़ी है, मेरा स्ट्रगल मेरी स्ट्रेंथ बनी, एंड देन ओनली लाइक मैं आगे बढ़ पाई। बिल्किस, कैमरा ऑन होने से पहले जब हम बात कर रहे थे, तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मोहसिन अली की अगर बात करें, ही वन गोल्ड मेडल एट खेलो इंडिया, देन पीएम मोदी रिकॉग्नाइज्ड हिम, एंड यू गेट आफ्टर दैट यू गेट दैट काइंड ऑफ मीडिया अटेंशन. But you said a very important thing that for every one Mohsin Ali, there are 100 unsuccessful athletes जिनके सपने नहीं पूरे हो पाते हैं. अगर हम कश्मीर की सिर्फ बात करें, तो एक नैरेटिव सेट है कश्मीर के अराउंड, या तो टूरिज्म के रिगार्डिंग या फिर टेररिज्म के रिगार्डिंग. आपको लगता है कि उसके बियॉन्ड भी एक कश्मीर है जो हाईलाइट नहीं हो पाता है, एंड वो कश्मीर है जिसके अंदर चाहे क्रिकेट हो चाहे कैरियाकिंग हो, स्पोर्ट्स को लेके कश्मीर कैन हैव अ मैसिव मैसिव कंट्रीब्यूशन टू इंडिया. सी स्पोर्ट्स सबसे पहले हमें यूनाइट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लाइक सी, इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स, you have number of inspirational stories there. If we talk about cricket, Akib is right now Yeah. here, and see the first Olympian in skiing, Arif Khan. दूसरी बार वो हमारी कंट्री को विंटर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसी कितनी स्टोरीज़ हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो, जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हो, उसमें कश्मीर का यूथ चाहता है कि वो ना कि जम्मू कश्मीर को बल्कि मुल्क को हाईएस्ट पोडियम तक ले जाए। आपने देखा जब वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, बिकॉज उसके बाद हमारे कैनोइंग में एक नया तब्दीली आई। एक एक हम्बल बैकग्राउंड से बच्चा निकल कर वो प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि मोहसिन अली,
ही सेड कि सर मुझे ख्वाब है कि मैं देश को ओलंपिक्स तक ले जाऊं और नेशनल एंथम वहाँ हमारी देश का बजे. सो दिस इज़ द बिग थिंग. कश्मीर इज़ नॉट ओनली टूरिज्म एंड जो भी नेगेटिविटी है, कश्मीर में ऐसे फेस ऑफ चेंज यू कैन से इट इज़ लाइक थ्रू स्पोर्ट्स आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके आगे पुश कर सकते हैं. और कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो कश्मीर का यूथ डेवलपमेंट चाहता है. कश्मीर का यूथ कंट्री को हाईएस्ट पोडियम तक लाना ले चाहता जाना है. चाहता है. और उसमें आपके पास हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो कुछ स्पोर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, और जैसे हम इस इंटरव्यू की शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि लोगों को कयाकिंग एज अ स्पोर्ट उसकी इतनी नॉलेज, इतनी डिटेल नहीं है. अ, इस स्पोर्ट को, कयाकिंग को इंडिया में, जैसे आपने बोला दिस स्पोर्ट इज एनीवे, ऑल वाटर स्पोर्ट्स आर एनीवे डोमिनेटेड बाय यूरोपियन कंट्रीज. तो इंडिया को अपना डोमिनेंस लाने के लिए, आई नो इट इज अ लॉन्ग जर्नी, बट फिर भी आपके हिसाब से अभी ऐसे क्या कदम हमारा देश ले सकता है, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ले सकती है कि एटलीस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेकिंग दैट डोमिनेंस? क्या ऐसे ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए जिससे कयाकिंग में इंडिया के मेडल्स ओलंपिक्स में और बढ़ते जाए? आप देख लीजिए लाइक हमारा जो रैंकिंग लास्ट ओलंपिक्स फॉर दैट वाज 71. या. सो हमारी कंट्री इतनी ह्यूज बहुत बड़ी कंट्री है. और आप देख लीजिए हाउ कैन कैनोइंग हेल्प इंडिया को 17 से 15-20 में लाने का, बिकॉज दिस स्पोर्ट्स हैव 16 मेडल्स इन ओलंपिक्स. Yeah. सो इफ़ वी प्लान फॉर 8 to 10 years, हमें सबसे पहले देखना है किस स्टेट में हम ग्रास रूट लेवल हब बना सकते. लाइक सी द इम्पोर्टेंट इज नंबर ऑफ एथलीट्स इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. पॉपुलैरिटी तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देख लीजिए अगर हमारी कंट्री की बात करेंगे, आप देख लीजिए ऑल ओवर कितनी वाटर फ्रंट्स हमारे पास है. व्हेन वी टॉक अबाउट कैनोइंग, अगर इसमें 16 मेडल्स हैं, हमें कम से कम ऐसे स्कूल्स में इट शुड बी अ कंपल्सरी. सो यू हैव टू डू. लाइक टैलेंट कहाँ से आएगा? ग्रास रूट लेवल, स्कूल लेवल से तो आएगा. आप कहीं ना कहीं वही यूरोपियन अप्रोच बोल रही हैं कि बच्चों को शुरुआत में ही स्विमिंग और जिम्नास्टिक और कैनोइंग बेसिक सिखाना चाहिए. चाहिए. बिकॉज लाइक सी जब बच्चा स्कूल में एक्टिविटीज़ में जाता है, वहीं से आपका टैलेंट आने जाता है. तो स्पोर्ट्स में आपका स्कूल लेवल पे एक स्ट्रक्चर, बहुत साइंटिफिक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है. इट शुड नॉट बी अ 45 मिनट्स वाला क्लास और आ जाओ वहाँ करो ये करो. मुझे लगता है कि वहाँ पर क्वालिफाइड कोचेस की ज़रूरत है. जैसे जब हम बात करते हैं नेशनल टीम का कोच अपॉइंट करने के लिए, हम बोलते हैं फॉरेन कोचेस को लाओ एंड देन दे आर विद द नेशनल टीम. देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लान. जैसे एक सिलेबस पूरे जैसे CBSE का सिलेबस बनता है, जैसे NCERT का सिलेबस बनता है, देयर शुड बी अ कंपल्सरी रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल आवर कंट्री. फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर में बच्चा कैनोइंग कर रहा है, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? उसको कौन देख रहा है? क्या वो सही कर रहा है? वो किस दिशा में जा रहा है? इट शुड बी इन अ वन फोल्डर, बिकॉज इंडिया IT में बहुत ज़्यादा आगे है. सो वी हैव टू मेक श्योर अगर उत्तराखंड में बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बच्चा कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है? देयर शुड बी अ मॉनिटरिंग. कितने एथलीट्स आए? देयर शुड बी अ रिसर्च, बिकॉज सी रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, हम उस स्पोर्ट्स का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. जब हम रिसर्च करेंगे देन ओनली वी विल नो कि हमें कैसे पुश करना है. आई वॉज इन हंगरी. मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर बच्चा आता है, पैडल करता है 10-10, 15-15 किलोमीटर.
उसको सिर्फ वॉच करते हैं, फिर वो रनिंग करता है। हो आई वॉज देयर इन 4 to 5 months। आई सर्च उनके स्कूल लेवल पे ही कितने मिनी कयाक्स के कंपटीशन फन टाइप, सो दैट उसको वो अट्रैक्ट करे। तो वैसी अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे ओलंपिक में कौन जा रहा है वो पर्टिकुलर एथलीट पे, हमें मॉनिटर करना है आज जम्मू कश्मीर में कयाकिंग में कितने एथलीट हैं, सब जूनियर में कितने हैं, और अभी आपको नेक्स्ट पता है कितने हैं नेक्स्ट अभी मेरे पास लगभग 100 एथलीट्स हैं who are training under you? अंडर मी। और मैंने भी वही अपना इक्विपमेंट लाया है। वी आर आई से वी डोंट हैव दैट इक्विपमेंट बट पुश कर रहे हैं, बिकॉज इस स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं अपने देश को वापस देना चाहती हूँ। जो मैं ख्वाब अचीव नहीं करना करी वो मेरे एथलीट्स करें, दैट इज़ माई एम। तो बिल्किस आपको चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, अ, विदेश से आपको इतने ऑफर आए, एंड अगर आप वो ऑफर ले लेती तो आपका करियर आप और एक्सपोनेंशियली और ग्रो करता, आप शायद और कंफर्टेबल लाइफ जीती। और ये आपने वापस सब कुछ अचीव करने के बाद आपने वापस कश्मीर जाना क्यों चुना? आपने स्ट्रगल ओवर कंफर्ट, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी में आपने इतना स्ट्रगल किया है, तो जब वो कंफर्ट सामने से आया तो आपने वो कंफर्ट छोड़ के फिर से वापस जाना, फिर से वही स्ट्रगल करना क्यों चुना? क्योंकि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये था कश्मीर वापस जाना। क्योंकि जब मैं कैनोइंग में आई, बिलीव मी, मेरे पास रोल मॉडल था ही नहीं कोई जो मुझे रास्ता दिखाए। कश्मीर में बहुत टैलेंट है और वो बच्चे बच्चे मुझे खींच कर ले लिए वापस। जैसे मोहसिन अली एक एग्जाम्पल है, ऐसे मेरे विलायत मेरा स्टूडेंट रहा, जाहिद, जिनको मुझे लगा कि नहीं मेरी ज़रूरत है मेरे लिए। लाइक वो जो कंफर्ट, लाइक मैं इंडिया टीम में थी, कौन नहीं चाहेगा इंडिया टीम का कोच रहना, एंड यू हैव एवरीथिंग, यू हैव प्रोटोकॉल, यू हैव advanced equipment, you have motor boat, you have every facility, but still आप उसको छोड़कर, वही कि मेरे पास कभी मोटर बोट नहीं होता है, कभी मैं खुद उतरती हूँ उसमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बिकॉज जब ग्रास रूट लेवल पे आप काम करोगे आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती। बट मुझे लगा कि नहीं, उन बच्चों को मेरी ज़रूरत है और जो मैं नहीं कर पाई वो कर पाए क्या। इसीलिए मेरा 2 बार 2014 में मुझे एक ऑर्डर मिला था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मैं आज एक अच्छी हैंडसम सैलरी ले सकती थी, मैंने उसको रिफ्यूज़ किया। उसके बाद दूसरा ऑर्डर मुझे मिला, उसके बाद मुझे हंगरी में भी ऑफ़र मिला। बट कश्मीर का वो जो मेरा स्ट्रगल है ना, वो वापस खींच कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ मेरी ज़रूरत है और मोहसिन जैसे एथलीट्स को मेरी ज़रूरत थी। अब मोहसिन एक लेवल पे आया, वहाँ इंशाल्लाह मुझे होप है कि उसको सपोर्ट मिलेगा। और यही मेरा था कि नहीं, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू स्टार्ट। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेरे उसमें आया। मैंने जब कैनोइंग स्टार्ट किया, कोई लड़की प्रैक्टिस के लिए नहीं आती, तो देन आई टुक हेल्प मीडिया में। मीडिया में आई, मैंने पेरेंट्स को घर घर जाकर समझाया कि आपकी बेटी आगे जा सकती है, वो अपना नाम कमा सकती है। क्योंकि जब एक लड़की सोसाइटी में आती, पहले वो अपने फादर के नाम से जानी जाती है, फिर उसके जब उसकी शादी होती है हस्बैंड के नाम। उसका खुद का नाम ये नहीं होता। तो देन आई स्टार्ट, लाइक इट वाज स्ट्रगलिंग, घर घर जाना, बच्चों को लाना, लड़कियों को लाना। और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेन किया, एंड दे आर इन नाउ डिफरेंट डिफरेंट, लाइक उनको अभी जैसे आपने बोला कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स दैट इज़ सब करेंटली हैं। जूनियर, दैट इज़ सब सब जूनियर। जूनियर। बट मैं 2012 से जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रही हूँ। तो ये अभी अगर सब जूनियर्स की बात करें, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितनी लड़कियां हैं? उसमें 50% गर्ल्स है, क्योंकि मेरा यही है कि देयर शुड बी अ रेशो 50%। और हमारी कंट्री को, अगर जैसे चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, उन्होंने वुमेन स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि रिजल्ट जल्दी आते। तो वुमेन स्पोर्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, देन ओनली आवर कंट्री विल बी एबल टू एक्सेल इन अ इंटरनेशनल लेवल। वुमेन स्पोर्ट्स को हमें बहुत ज़्यादा टारगेट, और लड़कियों ने प्रूव भी किया। यू सी द वर्ल्ड कप, आई वाज इमोशनल, लाइक जब मैंने हरप्रीत उसको सुना, एंड आई नो द स्ट्रगल, आई नो कि मतलब जब एक वुमेन टूर्नामेंट होता है,
कोई आप देख रहे हो कि कितने लोग उसको कोई नहीं देखने जाता भी देखने, आता है। हाँ। तो उसके बाद हमने ब्लाइंड में भी यस। उसमें जीता। और अगर ओलंपिक की बात करें, लास्ट ओलंपिक की, अगर हमारी कंट्री की लाज रखी वो वुमेन स्पोर्ट्स नहीं रखी। वो शूटिंग में हमारे यस। देश की बेटी ने वहाँ पर मेडल लिया, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। एंड भारत की लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। Well, Bilkis, I think it was a wonderful experience to know your journey, and I would I pray that this mission that you're on, Alhamdulillah, to thanks. train more and more youngsters, and I hope you train more of Mohsin Alis, and they go and probably win Olympic medals for our country. Thank you so much. थैंक्स अ Thank you for लॉट। मेरा speaking to ख्वाब us. यही है कि वो देश को हाईएस्ट पोडियम तक लाए, और उसी जज्बे के लिए हम है। और ये कहते हैं ना, नेशन फर्स्ट, हमारे लिए हमारा देश। और जब नेशनल एंथम बजता है तो हमारे लिए वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है खिलाड़ी के उसमें लाइफ में, क्योंकि वो जो काम करता है सिर्फ उस नेशनल एंथम के लिए बोलता है कि नहीं, उस पोडियम तक जाए।